నమస్తే, జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం, భారత్ మాతాకి జై. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మదర్సా చాప్ విద్యార్థులు విద్యావంతులు, వాళ్ళకి విద్యను నేర్పించేటటువంటి మహా విద్యాబోధకులు, ఆ తర్వాత ఆ మదర్సాల్లో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క మత గ్రంథం టెర్రరిజాన్ని ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆ మదర్సాల్లో ఏమేం జరుగుతుంది, ఎట్లా వాళ్ళ దినచర్యలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా కళ్ళ కట్టినట్టుగా కొన్ని క్లిప్స్ యాడ్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మదర్సాల్లో చదివి ఆ మత బోధకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మదర్సా టీచర్స్, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి బోధనలు విన్న తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి, ఎలా వెళ్ళిపోతారు, ఆ తర్వాత దేశానికి ఎంత ప్రమాదకరంగా తయారవుతారు అనేది ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. వీడియో హిందీలో ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. దయచేసి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो. अच्छा, बिल्कुल कुरान का हुक्म है. ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं. इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को. मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है. अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है. उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बात नहीं की थी. वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा. हाँ जी, कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो. ठीक है. वमिन रिबातिल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई. और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो. సో విన్నారు కదా, వీడు పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి ఒక మౌలానా గాడు, అంటే వాళ్ళ మత బోధకుడు. వీడి పేరు అబ్దుల్ అజీజ్. వీడేం చెప్తున్నాడంటే, ఖురాన్ మనకి టెర్రరిస్ట్గా మారమని స్వతహాగా చెప్తుందంట. అది కూడా ఎవరి కోసం? అల్లాకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల కోసం కాదు. అల్లాని ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో, ఎవరైతే నమ్మడం లేదో, ఎవరైతే పూజించరో, బహు ఆరాధకులు ఎవరైతే ఉంటారో, బహుదేవత ఆరాధకులు, విగ్రహాల ఆరాధికులు ఉంటారో, వాళ్ళని చంపేయమని, వాళ్ళ కోసం టెర్రరిస్టులుగా మారమని చెప్పేసి వీళ్ళ ఖురాన్ గ్రంథం ఏదైతే ఉందో స్వతహాగా చెప్తుందని చెప్పేసి ఈ అబ్దుల్ అజీజ్ అనే కటుముల్లాగాడు, పాకిస్తాన్ వాడు అనమాట వీడు. ఓకే, మీరు పాకిస్తాన్ వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారని మీరు అనుకుంటారు. ఈ మతం ఎక్కడున్నా, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే, వీళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒకటే, వీళ్ళ ఎజెండా ఒకటే. కాబట్టి ఏంటంటే, వాడు పాకిస్తాన్లో ఉన్నా, ఇండియాలో ఉన్నా, బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా, అమెరికాలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళది అదే పద్ధతి. ఓకేనా? వీళ్ళ మత గ్రంథం వీళ్ళకి నేర్పేది ఒకటే, టెర్రరిస్ట్గా మారాలి, టెర్రరిస్ట్గా మారాలి, టెర్రరిస్ట్గా మారాలి. ఖురాన్లో రాసి పెట్టి ఉందన్నమాట. ఇది 100కి 100% నిజం. आप लोगों में से ये बताइए कि कौन कौन है जो पटाखा खरीद कर फोड़ता और जलाता है? आप भी जलाते हैं? ये देखो, तो अब ये देखो, दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना, ये किनका त्योहार है? हिंदुओं का, यानी गैर कौमों का ये त्योहार है. तो हमको मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए. సో ఇదన్నమాట వీళ్ళ మత బోధన. చిన్న చిన్న ముక్కు పచ్చలాంటి పిల్లలకు కూడా హిందువుల పట్ల విషనూరు పోస్తున్నారు. హిందూ దేవతల పట్ల, హిందువుల యొక్క పండుగల పట్ల, ఉత్సవాల పట్ల, ఈ విధంగా మదర్సాలలో విషాన్ని నూరిపోస్తారన్నమాట. అది హిందువుల పండుగ కాబట్టి ముస్లింలు జరుపుకోకూడదు. పాపం చిన్నపిల్లలకి ఏం తెలుసండి, అదే ఓకే అని అంటున్నారు. ఎస్, ఇదే నేర్పిస్తారు ఇలాంటివే. ఇది చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే. ఓకేనా? ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మీకు ఆ మదర్సాల్లో ఏమేమి నేర్పించారు, దేశభక్తి ఏంటి, దేశానికి సంబంధించిన ఏదైనా సరే ఒక అంశం గురించి అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది, వాళ్ళకి ఎలాంటి విద్యాబోధన చేసి ఉంటారనేది మీరు ఈ పూర్తి వీడియో చూసిన తర్వాత క్లియర్గా మీకే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి వీడియో పూర్తిగా చూడండి. अंग्रेजी से पढ़ेंगे, देखिए उसमें तो मतलब दुनिया का फ़ायदा होगा कि आप डिग्री हासिल कर लेंगे और इसी तरह से आपको नौकरी मिल जाएगा. लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें मदरसा का ही पूरा नौकरी मिलता है, मदरसा का डिग्री. लेकिन यहाँ ये दुनिया में भी फ़ायदा है इसका, और मरने के बाद भी इसको फ़ायदा है. क्या मरने के बाद इसका फायदा? मरने के बाद क्या है कि तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे जो इंसान के जो लिए है, तो वो मरने के बाद ही है. रिजल्ट उसका मरने के बाद है.
हमारा नेशनल एंथम क्या है, आप बताइए। उर्दू बता दीजिए उसका। इंडिया का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय जो गान है वो कौन सा है? राष्ट्रीय गाना फउलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह, इसका क्या, अब ये बच्चा जो अभी सुना रहा है इसका क्या मतलब है सर? इसका तो मतलब हम लोग भी नहीं बता पाएंगे, ये अरबी जबान है, अच्छा। अरब की जबान बोलिए, लैंग्वेज है। हम नाजरा कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। जी जी। तो ये जो बच्चे अभी हमको सुना रहे थे, ये इस बच्चे ने जो सुनाया, जी, इसका क्या मतलब? मतलब तो हम लोगों को भी इतना मालूम नहीं है। मार्ट साहब, आप जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आपको नहीं पता? नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं है। हैं? कुरान हमें क्या सिखाता है उस बात को बताओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हुज़ैफा रहमान, अबू हुज़ैफा रहमान। क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो हिफ्ज़। हिफ्ज़ कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों में से जितने बच्चे हैं यहाँ पे, आप बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मौलवी बनना चाहिए। मौलवी बनना चाहते हो। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? खाड़ी हाँ? खाड़ी बनना चाहिए। आलिम बनना चाहते हो? इंशाअल्लाह पढ़ लिख कर आलिम दीन बनेंगे, आलिम दीन की बनेंगे। खिदमत करेंगे। तो आपका काम क्या होगा? वो स्पीच देना या फिर किसी मदरसे में एज ए टीचर काम करना? नहीं, अल्लाह जिसमें लगा दे। ज़्यादातर इरादा है कि दीन की खिदमत करेंगे, अच्छा, चाहे मदरसे के ज़रिए हो या मकतब के ज़रिए हो कौम की खिदमत या बराबर बनाएंगे। मस्जिद में आवाम की खिदमत हो। आप हमें कुछ बता सकते हो, मतलब यहाँ के अलावा बाहरी दुनिया के बारे में? जैसे बाहरी जो पढ़ाई लिखाई होती है, अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अंग्रेज़ी से पढ़ेंगे, देखिए उसमें तो मतलब दुनिया का फ़ायदा होगा कि आप डिग्री हासिल कर लेंगे और इसी तरह से आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें मदरसा का ही पूरा नौकरी मिलता है, मदरसा का डिग्री। लेकिन यहाँ ये दुनिया में भी फ़ायदा है इसका, और मरने के बाद भी इसको फ़ायदा है। क्या मरने के बाद इसका फ़ायदा? मरने के बाद क्या है कि वहाँ जो हाफिज़ होंगे उनको उनका सवाब मिलेगा, उसको वहाँ रिज़ल्ट मिलेगा। जो यहाँ पढ़ेंगे उसका रिज़ल्ट आखिरत में आएगा। यहाँ अरबी पढ़ने का जो है, और इसका रिज़ल्ट दुनिया में कम आदमी को मालूम नहीं होता है, और आखिरत में इसका पूरा रिज़ल्ट मिलता है। हाफिज़ का अलग, मौलवी का अलग, सबका अलग अलग रिज़ल्ट आता है ज़्यादा। तो अच्छा, आप लोग ये कभी महसूस करते हैं क्या कि जो बाहर स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई हो रही है, वो बच्चे नौकरियों के लिए ज़्यादा तैयार हो रहे हैं? क्योंकि आप भी बाहर जाएंगे तो आपको भी तो कंपटीशन करना होगा ना उनसे। देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग का मकसद क्या है कि मतलब लोगों को अपना अच्छा मैसेज देना है। और लोग जो पढ़ते हैं उनका ये मकसद रहता है कि हम डिग्री करें, पैसा लें। लेकिन हम लोग का ये मकसद नहीं कि पैसा कमाएं। हम लोग का मकसद ये है कि मतलब लोगों को अच्छा मतलब ये पैगाम पहुँचे कि लोगों को आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल झगड़ा। ये कह रहे जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई होती है वो उनका मकसद पैसा कमाना होता है और नौकरी पाना होता है, ये उनका मकसद दुनिया है। का मकसद है। दुनिया का मकसद है रहता ना? है। जी जी। और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उसका मकसद है कि आप मरने कैसे के बाद जो कैसे आने वाली जिएंगे। हाँ, आने वाला जो वक्त आएगा मरने के बाद, तो वहाँ हमें जो है पैदा करने वाले के सामने पेश होना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? असल हमको दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, रब ने भेजा है, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करके जाना है जो वहाँ हमको उसका जो है बेनिफिट मिले। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे जो इंसान के जो लिए है, तो वो मरने के बाद ही है, रिजल्ट उसका मरने के बाद है। एक सवाल मैं आप लोगों से बहुत बेसिक करूंगा। आप लोगों में से कोई भी बच्चा जवाब, आप लोगों में से ये बताइए, हमारा नेशनल एंथम क्या है, आप बताइए। उर्दू बता दीजिए उसका। इंडिया का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय जो गान है वो कौन सा है? राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय गाना ये वंदे मातरम। आप लोगों में से कोई राष्ट्रीय गान क्या है बेटा? जन गण मन अधिनायक। चला गया हैं? तुमको याद है? याद है किसी को? क्या याद रहता नात है? नात नात याद रखते हैं। आप लोगों में से कोई नेशनल एंथम सुनाएगा? कोई? जन गण मन अधिनायक जय है, याद है किसी को? जन गण मन, दो लाइन ही कोई सुनाओ। सुनाओ भाई सुनाओ। चलिए थोड़ा और मदरसा घुमाइए हम लोग को। चलो भाव चलो। अरे क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सस्ता में चलो। हैं? ये सारे लोग अपनी थाली अपने पास रखते हैं, जी जी जी। तो यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद फिर जाके आराम करेंगे अपने अपने। चाहिए अपनी थाली धो करके अपना रख जी लेंगे। जी ये सारे क्लास के बच्चे बैठ जाते हैं। जी जी।
इसको क्या बोलते हैं उर्दू में इस जगह को? ये मतअम बोलते हैं, मतअम। मतअम जी, खाने का हॉल। अच्छा, तो आज खाने में क्या मिल रहा है इन लोगों को? आज तो सब्जी है सर। अच्छा, सब्जी चावल। सब्जी चावल है। हैं? और तुम्हारा खाना हो गया? इधर आओ, इधर जाओ। क्या खाया तुमने? इधर आओ, इधर आओ, इधर बताओ, शर्माते हो क्या खाया? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? नूर हसन। क्या खाया अभी? चावल, दाल और आलू सब्जी। सोयाबीन की सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी। बाकी दिनों पे क्या मिलता है? रोस्ट मिलता है, कल फिर अंडा मिलेगा। अच्छा, अलग अलग ये है डेली आपका बदला हुआ मेनू है, मतलब कभी सब्जी, कभी हरी सब्जी, कभी मतलब और बदल बदल करके। जी। तो आज का जो मेनू है चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी है और दाल है। और फिर शाम में क्या रहेगी? वही सब्जी रहेगी। वही सब्जी रहेगी। कभी अंडा उंडा मिल जाता है। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा शाम में? चावल सब्जी। अच्छा, हरा सब्जी शाम में बनेगा। और रोटी की चावल? अच्छा, रोटी भी चावल भी। चलिए चलिए आइए। तो थोड़ा क्लासरूम हम लोग देख सकते हैं क्या कोई? मतलब उसमें बैठने की व्यवस्था कैसी है? तो ये यहाँ पे जो टीचर हैं वो बैठते होंगे। जी हाँ जी। और यहाँ पे स्टूडेंट बैठ जाएंगे। स्टूडेंट बैठते हैं। मान लीजिए हम स्टूडेंट ही हैं, बैठ गए। हाँ जी। अच्छा माहौल है। चलिए, क्या नाम है? ये भी हिफ्ज़ करता है। हाँ? एहसान, प्लेट रखे आओ फटाफट। अरे इससे भी तो छोटा है। इधर इधर आ जाओ। सोना। अच्छा, पढ़ाई खाना खा रहे थे सर। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हसन। कितनी उम्र है तुम्हारी? 8.5। क्या नाम है पापा का? हबीशालम। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह, इसका क्या, ये बच्चा जो अभी सुना रहा है इसका क्या मतलब है सर? इसका तो मतलब हम लोग भी नहीं बता पाएंगे। ये अरबी जबान है। अच्छा। अरब की जबान बोलिए, लैंग्वेज है। आप यहाँ पे एज ए टीचर हैं? सब 2 मिनट आएंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। जी जी। तो ये जो बच्चे अभी हमको सुना रहे थे, ये इस बच्चे ने जो सुनाया, जी, इसका क्या मतलब? मतलब तो हम लोगों को भी इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि वो मास्टर साहब जो बोले, मास्टर नाजिम साहब, कि वो अरबी दर्जात में जाने के बाद वो जो है उसका मतलब मीनिंग और उसका तर्जमा और उसका जो है क्या तशरीह है, तफसीर है, वो सब कुछ जान जाते हैं। तो आपने भी जैसे कुरान में जो बातें लिखी गई हैं वो तो अरबी में है ना? जी, अरबी में। आपने भी सब कुछ उसको याद कर लिया होगा, जैसे इन बच्चों ने जैसे हिफ्ज़ कंप्लीट की, तो उसका आप मतलब नहीं जान रहे हैं? मतलब जो हाफिज़ होता है तो हाफिज़ रट लेता है सिर्फ, उसका मतलब, उसका तशरीह, उसका तफसीर, उसका मानी वो नहीं जानते हैं। जो बच्चे अरबी दर्जात में जाते हैं उन्हीं बच्चों को मालूम होता है कि इसका मानी क्या है, इसका मतलब क्या है, वही लोग कहेंगे। तो मास्टर साहब, आप जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आपको नहीं पता? नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं है। बस कुरान ये है कि कुरान पढ़ने जानते हैं, कुरान को याद किए हैं, बस कुरान दूसरे को पढ़ाते हैं, दूसरे को मतलब उसका मतलब ज्ञान देते हैं, वही करते हैं। बाकी उसका इतना हम लोगों को भी मालूम नहीं है कि क्या मतलब है, लेकिन हाँ इतना ये है कि मतलब बाज़ लफ्ज़ जो आता है तो समझ जाते हैं कि भाई ये कहना चाहते हैं, लेकिन पूरी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। तो इस बच्चे ने, जो छोटे बच्चे ने उतनी लाइन सुनाई मुझे, 8-10 लाइनें होंगी, उसमें एक भी लाइन का आप मतलब नहीं बता सकते हमें? जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, ईमान और सब्र के साथ तुम काम करो, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका पूरा, चलिए शुक्र है आप इतना तो पूरा तर्जमा जो है वो जिसको आलिम कहते हैं, जिसको ये मौलवी कहते हैं, इसका कोर्स होता है, 9 साल का कोर्स होता है, वही बता पाएंगे पूरा बिल्कुल A to परफेक्ट तर्जमा।
अच्छा, ये जो बच्चे जो जितने मदरसे में हैं, ये एक तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे पैजामा कुर्ता या टोपी पहनते हैं, थोड़ा इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे ये बच्चा आ रहा है, इसने पैजामा कुर्ता पहन रखा है, टोपी पहन रखा है, मतलब एक ही कलर। ये यूनिफॉर्म है क्या? यूनिफॉर्म हुआ, इस्लामिक यूनिफॉर्म है ये। अच्छा। और कुछ मदरसे वाले भी अपना मदरसे की तरफ से यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा भी है। तो ये जो छोटे बच्चे जो टोपी पहनते हैं, इसका टोपी पहनने के पीछे का क्या मकसद है? इसका रीजन ये है कि सर हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने उम्मत को बता के गए, अपने लोगों को बता के गए, अपने पैरोकारों को, कि भाई किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह से लाइफ अपना जो है गुजारनी है। तो उसके लिए हमें टोपी पहनने की मतलब ये नसीहत किए हैं। इससे जो इसी को सुन्नत रसूल कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना सुन्नत अदा करके दिखा के गए दुनिया से, तो उसको हमें भी फॉलो करना है। तो ये बच्चे हर टाइम टोपी एनी टाइम पहनना कोई ये नहीं है कि कंपलसरी नहीं है, बट माहौल की वजह से हर वक्त पहना हुआ रहता है। बाकी ये है कि नमाज के वक्त तो पहनना ही पहनना है। मतलब बाकी बच्चे पहन रहे हैं तो सब पहने रहते हैं। जी जी। टोपी कब उतारते हो तुम? हैं? जब सोने जाते हैं। टोपी क्यों पहनते हो? क्यों पहनते हैं? नबी की सुन्नत है, बोलो। वाह, सारे लोग टोपी पहनते हैं। సో చూశారు కదా, ఈ మదర్సా కృష్ణగంజ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మదర్సా అనమాట. ఆ మదర్సాలో ఎట్లాంటి విద్యా బోధన జరుగుతుందనేది ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది. ఈవెన్ వీళ్ళకి జాతీయ గీతం గురించి కూడా తెలియదు అనమాట. అంటే దేశానికి సంబంధించినటువంటి, దేశ భద్రతకు సంబంధించినటువంటి, దేశభక్తికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి అంశాలు కూడా వీళ్ళకి బోధించబడదు. ఇక్కడ కేవలం ఉగ్రవాదులను తయారు చేయడమే వీళ్ళ ముఖ్య లక్ష్యం అన్నమాట. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఈ ఇక్కడ చదువుతున్నట్టు మదర్సాల్లో చదువుతున్నట్టు మదర్సా చాప్ స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే, బయట ప్రపంచంలో చదువుకున్న ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఐటీ కావచ్చు, ఏదైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే, సైన్స్కి సంబంధించిన ఎటువంటి విషయాలైనా సరే, కేవలం ఈ భూమి మీద బతికున్నంత కాలం మాత్రమే పనికొస్తాయి, చచ్చిపోయిన తర్వాత పనికిరావు. ఓకే, మరి మీ మదర్సాల్లో చెప్పినటువంటి పాఠాలు మరి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా పనికొస్తాయి అని అంటే, దాన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే, అల్లా మమ్మల్ని ఈ భూమి మీద దేనికోసం అయితే పుట్టించాడో ఆ మక్సద్ పూర్తి చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత, పైకి పోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ రిజల్ట్ వస్తుందంట. ఏముంటుందండి చెప్పండి? 72 హూర్, 76 మంది కన్యలను ఇస్తాడనమాట అల్లా. ఇదే వాళ్ళ ఖురాన్లో రాసిందనమాట. ఆ 72 హూర్ల కోసం వీళ్ళు ఉగ్రవాదులుగా మారుతారు, టెర్రరిజం, ఆ తర్వాత వీళ్ళు చేసే అరాచకాలు, ఇవన్నీ కూడా అల్లా కోసం చేస్తున్నారన్నమాట. అల్లా ఖుష్ అవుతాడు, అల్లా సంతోషించి వీళ్ళ కోసం అక్కడ 72 మంది కన్యలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం పక్కలేసి వీళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తుంటారనమాట. ఓకే, ఇదే వీళ్ళు చెప్పాలనుకున్నది. ఈ మదర్సా చాప్ ఉపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఇదేనమాట చెప్పాలనుకుంటున్నది. ఆ తర్వాత వీళ్ళ బోధనలు విన్న తర్వాత వీళ్ళు ఎప్పుడైతే మదర్సాల నుంచి బయటకు వస్తారో వీళ్ళు ఏ రకంగా ఎలాంటి సైకోలుగా మారిపోతారనేది నెక్స్ట్ చూడండి. मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू, मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ, मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा, है मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा, बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है, बस सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में नहीं लगेगा, बस सिर्फ हिंदू नहीं आना चाहिए, नहीं हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, क्या है प्रधानमंत्री, जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह की पावर है, बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने अमीर को तबाह करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं, मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन। मैं जितना अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा ना, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जाऊंगा सीधा। आरोप लग रहा है कि यहाँ सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को पूरा हिंदुस्तान की जमीन जो हाजी सरपंच जिनका मैं नमाजा हूँ, कमांडो और सेना हमारे पर चलती है, सरकार के ऊपर नहीं चलती। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, कहीं भी बाहर चले जाओ, हमारी जमीन वहां लगे। इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारी जमीन वहां लगे, हम यहाँ के राजा हैं।
సో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, మదర్సాలో చదువుకున్న వాళ్ళు, యాక్చువల్లీ వీళ్ళకి చదువు చెప్పడం కూడా చాలా ప్రమాదకరమైన అనుకోండి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యన చూశారు కదా వైట్ కలర్ టెర్రరిజం మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది. వీళ్ళని చదివించినా కానీ ప్రమాదమే, చదివించకపోయినా ప్రమాదమే. సో ఈ మదర్సాలు ఉండాలా లేకపోతే దేశవ్యాప్తంగా వీటన్నిటికి తాళాలు వేయాలనేది మీరు ఒకసారి ఈ వీడియోని చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా మీ కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను, ఈ మదర్సాలు ఎలాంటి బోధనలని బోధిస్తాయి, అసలు ఇస్లాం వెనుకున్నటువంటి చీకటి నిజాలు ఏంటి అనేది ఇంతకుముందు చేసిన వీడియో, దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. దాన్ని కూడా పూర్తిగా చూడండి. వీళ్ళ యొక్క కాన్సెప్ట్స్, ఎజెండా ఏంటనేది మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. అంతవరకు సెలవు. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం, భారత్ మాతా కీ జై.